Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your chemistry class. But before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with chemistry. In the previous we have done up to chapter 2nd. Now today in this video we will discuss about worksheet of chapter 2nd, worksheet 1, filling the blanks. First, a chemical reaction occurs only when the substances are brought in close contact with each other. एक केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब उसके दो सब्सटेंसेस को हम क्लोज कांटेक्ट में लाएंगे एक दूसरे के, तभी एक जो केमिकल रिएक्शन है पॉसिबल है. द किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. जो किनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड्स में वो लीस्ट होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन गैसेस में जो किनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी. क्यों होगी? क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं ऑल द टाइम इन डिफरेंट डायरेक्शन. नेक्स्ट, नंबर ऑफ केमिकल कोलिजन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो केमिकल बॉन्ड्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं, एंड बाय एक्वायरिंग kinetic energy molecules randomly move in all direction and they collide with each other. So that's why number of chemical collision increase with increase in temperature. Reaction which takes place in presence of light are known as photochemical reaction. जो reaction presence of light में होते हैं उन reactions को हम बोलते हैं photochemical reaction. means जो chemical reaction with help of light होती है उसे हम photochemical reactions बोलते हैं. कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडुलेटेड चेंज. जो कर्डिंग ऑफ मिल्क है वो क्या है? एक एसिडुलेटेड चेंज है. नेक्स्ट, अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट इज नोन एज प्रमोटर. जो सब्सटेंस एक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं ना केमिकल रिएक्शन, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं. मीन्स जो एक कैटलिस्ट की हेल्प करता है, ठीक है, एंड उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंस देम. फर्स्ट वन इज वाटर. बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इट डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वी बैलेंस इट बाय प्लेसिंग 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड पे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ hydrogen and 1 molecules of oxygen on the product side. In the next equation, here we have sodium react with water give rise to sodium hydroxide and hydrogen. We balance them by placing 2 with sodium and 2 with water because we get 2 molecules of sodium hydroxide and hydrogen gas which evolved. This arrow, upward arrow, show that here hydrogen gas releases. Next equation is iron plus sulfur react in the presence of heat. जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे तभी आयरन एंड सल्फर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी ऑन द प्रोडक्ट साइड. नेक्स्ट इज पोटाशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस बाय हीटिंग. जो पोटाशियम क्लोरेट है वो डिकम्पोज हो रहा है जब उसको हीट प्रोवाइड हो रही है. इट विल डिकम्पोजेस टू पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन. हेयर वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. हेयर upward arrow show that in this equation oxygen gas releases.
and in next equation we have sulfur dioxide react with oxygen in the presence of vanadium pentoxide at a pressure of 450 to 500 atmospheric pressure, and it will give sulfur trioxide and heat energy. We balance them by placing 2 with sulfur dioxide. It will react with 1 molecules of oxygen gas in the presence of vanadium pentoxide at a pressure of 450 to 500 atmospheric pressure. It is a reversible reaction. Here we got 2 molecules of sulfur trioxide plus heat energy. एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स हम प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी कंडीशंस. नेक्स्ट गिव रीजंस. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीजन इज मैक्सिमम इन गैसेस. रीज़न देना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीजन है वो मैक्सिमम क्यों होती है गैसेस में. बिकॉज कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन गैसेस. जो कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की गैसेस में वो मैक्सिमम होती है. रैंडमली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स गैसेस में. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीजन इज मैक्सिमम इन गैसेस. जब वो रैंडमली मूव करेंगे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, सो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीजन इज मैक्सिमम इन गैसेस. नेक्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मोर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज. जो एक रेट है केमिकल रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्यों होता है? बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा कैनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मॉलिक्यूल की? इंक्रीज. कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो रैंडमली मूव करेंगे और नंबर ऑफ क्लीजन इंक्रीज होंगे. सो हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. इसके साथ जो रेट है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, एसिलेटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. जो एसिलेटेड वाटर को ही हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए. क्यों? बिकॉज एसिलेटेड वाटर डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. जो एसिलेटेड वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज MnO2 इज यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. इसको क्यों यूज़ करते हैं? Because MnO2 is used as a catalyst for decomposition of potassium chloride. एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. कैटलिस्ट क्या करता है? वो उसमें खुद में चेंज नहीं आता, लेकिन वो रिएक्शन को इजी पाथ प्रोवाइड करता है. इस रिएक्शन में MnO2 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. विद दिस कैटलिस्ट देयर इज लोअर ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर लोअर हो जाएगा और रिएक्शन ईजिली अकर हो जाएगी. सो दैट्स वाई MnO2 इज यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. नेक्स्ट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म ड्यूरिंग लाइटनिंग. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लाइटनिंग के ड्यूरिंग फॉर्मेशन होती है. क्यों होती है? ड्यूरिंग लाइटनिंग देयर इज़ अ हाई टेम्परेचर. जब लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. अंडर विच ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. सो दैट्स वाई ड्यूरिंग लाइटनिंग मोनोऑक्साइड इज फॉर्म. नेक्स्ट, वर्कशीट 2 ऑन पेज नंबर 35 फॉर चैप्टर 2. कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन. Here we have iron react with oxygen in the presence of moisture and give rust. Rust का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3. Here we place 4 with iron and 3 with oxygen which react in the presence of moisture and give 2 Fe2O3. It is a balanced equation. Next, 2 Cu plus O2 react to form copper oxide which is black in color. 2 molecules of copper oxide. Here next, silver react with sulfur form to black compound that is Ag2S. यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा सिल्वर को. कैसे सिल्वर को बैलेंस करेंगे? बाय प्लेसिंग 2 with silver on the react hand side. Next, iron oxide react with oxygen to give a brown color compound that is 2Fe2O3. Here we have to balance iron oxide.
यहाँ पे आयरन के कितने हमारे पास एटम्स है 4. सो वी प्लेस 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद आयरन ऑक्साइड. सो विद दिस देयर इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. 4 atoms of iron and 6 atoms of oxygen. Next, P2O5 react with water give rise to phosphoric acid, that is 2H3PO4. Here we have to balance hydrogen by placing 3 with water. Next, complete the following flow chart, also balance it. When potassium react with oxygen, it will form potassium oxide. Here we place 2 with this. Potassium react with oxygen give rise to potassium oxide plus water. So after that it will form, when potassium hydroxide react with water, it will form caustic potash. In the next equation, Ca react with oxygen form lime, that is calcium oxide, and calcium oxide react with water to form slaked lime, that is CaOH twice plus O2. Next, complete the following. Question number 3, metal plus oxygen give rise to metal oxide plus water. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होंगे, और जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड. नेक्स्ट, नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन देंगे जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देंगे. नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड. नेक्स्ट, गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ हीट ऑन. जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे इट विल डिकम्पोजेस टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन. नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रेट decomposes to sodium nitrite plus oxygen. Hypochlorous acid, it will decomposes in the presence of sunlight and decomposes to hydrogen chloride plus oxygen. Silver nitrate decomposes in the presence of sunlight and form silver, oxygen and nitrogen dioxide. Here upward arrow show that nitrogen dioxide releases in this reaction. Next is aluminium hydroxide, decomposes in the presence of heat and form alumina, Al2O3 plus 3 molecules of water. With this your second worksheet is complete. If you have any doubt regarding this, then we will discuss in your online class. Thanks students. Have a nice day.